Hello friends, welcome to Manu Law classes. In this video, I am going to discuss the Daily Hindu analysis of 20th February 2022. Today also is a National Science Day, which is annually observed on 28th February to commemorate the birth of Asia's first Asia's first person who won a Nobel Prize in Science, that is Dr. C.V. Raman. So the theme of the National Science Day 2022 is integrated approach in science and technology for a sustainable future. Now, C.V. Raman, he is popularly known for Raman effect, okay, and his studies in scattering of light. He was awarded the Nobel Prize in 1930, and also he was the first Asian to receive the Nobel Prize in any of the science branch. Now Article 51A, which is also the fundamental duty. So Article 51A H, it says that it is a duty of every citizen to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Now let's start with the news. तो आज का जो एक important news है about development in the Russian-Ukraine standoff war. So over here, as you know, that many students from India are stuck in Ukraine, and they are being evacuated through various routes, including the countries like Poland, Belarus, Slovak Republic. So over here, if you will just see, यहाँ पे देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड्स को भी क्लियर किया हुआ है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिजोल्यूशन जो था 8979, जिसमें इंडिया ने इसके एब्सटेन फ्रॉम इट्स वोटिंग. सो दिस रिजोल्यूशन यूएनएससी के बाद अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये डिबेट जाने वाला है over here. But if you will just see that India has every reason to contribute in resolving the Ukrainian conflict. So India believes that dialogue between the two warring sides is the only way ahead. Then 3 more flights bring back 688 more Indians. So India has deployed many flights to evacuate the students who are stranded in Ukraine or the countries like Poland, Belarus, etc., Romania, Hungary, and then 1,000 have been evacuated through land routes. नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ करने जाते हैं उनका जो थोड़ा सा एक फ्लाइट है. सो यू विल सी दैट इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी एंड स्लोवैक रिपब्लिक. बट वी विल जस्ट सी दैट इंडियंस जो हैं दे आर स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल who are leaving Ukraine since the war has started. Then many of the students, they are living on a very meager resources, as you can see over here. And then many students, they have complained the lack of food, water and sanitation. तो यहाँ पे ये है कि evacuation has become a major humanitarian challenge. तो यहाँ पे अगर हम इंडिया का अगर स्टैंड भी देखेंगे, so it is calling it a major humanitarian crisis because of the displacement of large number of people. उसी से रिलेटेड न्यूज़ है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू फेस टफ चॉइस एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द परमानेंट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे जो यूएनजीए हैं इसमें 193 मेंबर्स होते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री वन सीट. तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिजोल्यूशन आया था 8979 कंडेमनिंग द रशियन इन्वेजन और एक्शन इन यूक्रेन, तो यहाँ पे इंडिया ने एब्सटेन किया था इस वोटिंग से. नाउ अगेन दिस क्वेश्चन विल बी ब्रॉट अप इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो इंडिया वी हैव टू सी कि इंडिया किस तरफ जाता है. ठीक है, करेंटली इंडिया हैज़ एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, बट इंडिया हैज़ ऑल्सो हैज़ सेड दैट there is a growing concern because of the humanitarian crisis and especially the Indian students who have been caught in the crossfire.
द नेक्स्ट इज DRDO सैफरान टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। तो ये एक इस टाइप के न्यूज़ हम देखेंगे कि वन लाइनर्स में बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे एक फ्रांस की कंपनी है सैफरन, सो दे हैव साइंड अ डील टू डेवलप 125 kN इंजन फॉर इंडिजीनियस फाइटर। ये इंडिजीनियस फाइटर क्या है? इट इज़ द 5th जनरेशन। इंडिजीनियस का मतलब होता है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड और बिल्ट इन द कंट्री इटसेल्फ। So it is the 5th generation advanced medium combat aircraft which is under development. इसका जो engine है it is called as 125 kN engine. So for example, if question comes that India and France has DRDO and Safran has entered into a deal to develop 125 kN engine for what? So it is going to be developed for advanced medium combat aircraft. Now appointment, this was the appointment news. Again this is a revision. So Ilker Aiki, who has been appointed as a CEO of Air India. So earlier he was the CEO of Turkish airline. So now he is the CEO of Tata Sun, which is being opposed by Swadeshi Jagran Manch. Problem यहाँ पे क्या है? Problem है कि it will jeopardize the national security. Now अगेन सम मोर न्यूज़ फ्रॉम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे है कि यूक्रेन एग्रीज टू मीट रशिया फॉर टॉक्स एंड बेलारूशियन बॉर्डर। सो बेलारूस विच इज़ द बॉर्डरिंग कंट्री। तो यहाँ पे जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की, हु इज़ द president of Ukraine, and now he has agreed to meet with the Russian leader on Belarusian border. He will be meeting at the sites of Chernobyl nuclear plant site. The next is West unleashes SWIFT bans, more harsh blows on Moscow. तो ये एक पार्ट है इकोनॉमिक सैंक्शन का. It is a part of economic sanction. So what is this economic sanction? So first of all let's understand what is SWIFT. So SWIFT का जो full form है, it is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, and it is a cooperative society located in Belgium. So यहाँ पे क्या होता है, ये एक global payment system है. It is like a messaging system for money transfer. For example, if somebody is transferring money from an Indian bank to American bank, so the message is passed through SWIFT. So if somebody is banned from SWIFT, it means that they cannot take part in इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. सो जो उनका एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है. सो इफ़ रशिया is not the part of SWIFT, so definitely it is a very tough economic sanction on Russia, and it is going to impact 11,000. It is going to impact the trade, financial transactions in Russia. So over here, if we will just see that SWIFT financial messaging system, which daily moves countless billions of dollars around more than 11,000 banks and other financial institutions around the world. The next is Nepal passes contentious US grant. तो यहाँ पे एक US ग्रांट है जिसका नाम है US गवर्नमेंट मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट इन 2017. तो ये 2017 में ही ये फंड तैयार हो गया था, एंड फंड का जो इंटेंशन है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. बट नेपाल के पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया था. जब तक रेटिफाई नहीं होते तब तक नेपाल ये $500 मिलियन जो US ग्रांट है, इट कैन नॉट बी यूज. बट नाउ Nepal parliament has passed the law so that they can use this $500 million US grant. Now the next is UN flags Colombo's efforts on rights. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इनकी जो हाई कमिश्नर है उनका नाम है मिशेल बैशलेट. सो ओवर हियर दिस इज रिलेटेड टू द माइनॉरिटी इश्यूज इन श्रीलंका. तो वहाँ पे जो तमिल्स हैं, ओके फाइन, तो वहाँ पे इनका राइट्स इशू के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. सो लास्ट ईयर इफ यू विल जस्ट सी द 46th
सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में द रिजोल्यूशन वॉज ब्रॉट ऑन श्रीलंका एक्सप्रेसिंग द सीरियस कंसर्न एट द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका. ओके, बट इसमें क्या हुआ था, इंडिया का पोजीशन क्या था, दैट इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग. ओके, बट नाउ दिस ईयर एट द 49th सेशन no resolution is going to come up by against Sri Lanka, but there will be an interactive dialogue on the progress made by Sri Lanka in promoting reconciliation, accountability and human rights. Now this editorial is very important editorial. यहाँ पे जो है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 8979 विच हैज़ बीन वोटेड अगेंस्ट, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है कि इंडिया ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया है और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में क्या होने वाला है. सो ओवर हियर इफ वी विल जस्ट सी दैट इट इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स. ओके, सो अगर आप हम इंडिया को अगर देखेंगे, सो इट ओवर हियर वी हैव चाइना. ओके, सो अगर हम इंडिया को अगर एक सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे, सो इंडिया जो है आफ्टर द यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक आर्क बना हुआ है टू स्टेबलाइज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, जिसमें चाइना, ईरान एंड रशिया आर प्लेइंग द मेजर रोल. सो यहाँ पे इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग अ लिटिल हेल्पलेसनेस इन द लार्जर कॉन्टिनेंट. देन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, तो इंडिया का जो है एक क्लोजनेस जो है टिल्ट टूवर्ड्स रशिया वो इंक्रीज़ हुआ है. हमने पहले भी किया था दैट देयर वाज अ समिट, RIC समिट. ओके, सो सी दिस RIC समिट इट वाज इम्पॉर्टेंट. सो RIC समिट इंटेंडेड टू वेयर रशिया वाज प्लेइंग द पार्ट टू डिसुएड चाइना फ्रॉम बीइंग बोल्ड एट द बॉर्डर. तो अब यहाँ पे जो रशिया का जो इंडिया का जो टिल्ट है उसका जो रीजंस एक्सप्लेन किया गया है कि एक तो नाटो का एक्शन जो है या वेस्ट का जो एक्शन है यूक्रेन में या रशिया का जो एक्शन है यूक्रेन में वो इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम है चाइना. सो फॉर दिस रीज़न इंडिया डज नॉट वांट टू लूज इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया. फिर उसके बाद अगर हम एक बिगर पिक्चर में देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया इज़ अगर हम लैंड में देखें तो इंडिया इज़ लाइक साइड लाइन. ओके, सो ओवर हियर विदाउट रशिया इंडिया विल बी हेल्पलेस. बाय द सेम टाइम अगर हम मैरीटाइम डोमेन की बात करें तो यहाँ पे विदाउट इंडिया नीड्स द वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट टू कंटेन चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, बट अगर हम देखेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया स्टिल्स टुवर्ड्स चाइना एंड रशियाज कंटिन्यूड एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, सो इट विल एम्बोल्डन चाइना एंड इट्स टेरिटोरियल एम्बिशंस. देन द न्यू सैंक्शन रेजिम, जैसे कि अभी हमने अभी पढ़ा कि रशिया हैज़ बीन पुट आउट ऑफ स्विफ्ट. तो न्यू सैंक्शंस रेजिम अगेंस्ट रशिया विल हैव ग्रेटर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन विद मॉस्को. देन द लार्जर, जितना ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा चाइना और रशिया एक दूसरे के क्लोज आएंगे, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया. देन इफ यू विल जस्ट सी कि एक और रीज़न है दैट इफ़ द टेंशन बिटवीन द रशिया एंड द वेस्ट परसिस्ट, तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के सामने एक चैलेंज होगा दैट इट हैज़ टू बैलेंस द एक्सट्रीम. नाउ सी इफ यू विल जस्ट सी देयर आर टू एक्सट्रीम्स, एक तरफ US है, एक तरफ रशिया है. नाउ इंडिया का जो अभी नीड है उसमें रशिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, USA का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. So India has to balance between these two extremes if the conflict continues. Now over here यहाँ पे यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसको लेके एक इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैक है, फैकल्टीज़ का जो लैक है, क्यों हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं मेडिकल कोर्सेज़ को पढ़ने के लिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द शॉर्टेज ऑफ सीट्स इन इंडिया, उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ है. क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि दैट प्राइवेट सेक्टर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू ओपन दी मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट वाई द पब्लिक हेल्थ सेक्टर इज़ नॉट वाइब्रेंट इन इंडिया इज़
बिकॉज ऑफ एक तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है जो हेल्थ स्ट्रक्चर में कंपेयर टू आवर ह्यूज पॉपुलेशन, वो बहुत ही कम है. देन there is significant shortage, there are problems related to land, equipment and trained faculty at postgraduate level. So जब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, we cannot see the increase in the availability of medical healthcare personnel in India. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.